और भाई क्या हाल है? Match week 3 of the Premier League is here. But what a second week we had. City continued to show their dominance, whereas United were disastrous. Liverpool fell again, and the London derby, उफ, it was electric. अब मैच वीक 3 में टोटल 9 मैचेस हैं एंड सबके बारे में बात करते हैं एक एक करके इस वीडियो में. हेलो गाइस, माय नेम इज अभिजीत एंड यू आर वाचिंग कॉर्ड ऑफ साइड. Match week 3 kicks off with Tottenham Hotspur hosting Wolves at the Tottenham Hotspur Stadium. Well, Spurs are coming in this match with a hard-fought draw against their London rivals Chelsea. And अगर आपने वो मैच मिस किया है, I have made a detailed review video on it. You can check that video later. Link is in the description. Wolves की अगर बात करें, well, they are still searching for their first win of the season, and by the looks of it, they have to wait more. Spurs का defense against Chelsea wasn't that good, but still Wolves के लिए वो ज़्यादा अच्छे होंगे. I don't think they would have any problems. Antonio Conte will miss this match because of suspension he got against Chelsea, and I think it should be an easy victory for Spurs, and I predict a scoreline of 3-1. And now it's a goal rush. 4 matches kicking off at the same time. Leicester City versus Southampton, Everton versus Nottingham Forest, Fulham versus Brentford, and Crystal Palace versus Aston Villa. सबसे पहले बात करते हैं Leicester City versus Southampton की. Well, Leicester are coming in this match after a 4-2 loss against Arsenal. And to be honest and fair with them, Arsenal were the better and the stronger team. बात करें अगर Southampton की, well, they won their first points in a 2-2 draw against Leeds United. So both the teams are searching for their first win of the season, and मेरे हिसाब से ये एक अच्छा मौका है दोनों टीम्स के लिए, because दोनों टीम्स काफ़ी इवनली बैलेंस्ड है अगर एक दूसरे से कंपेयर की जाए. But I still think Southampton have just a slight edge above Leicester City, and I see them winning tomorrow in a 2-1 scoreline. Now Fulham against Brentford. भाई साहब, ये एक बहुत बढ़िया मैच होगा. Fulham, well, they drew their first match versus Liverpool on the opening day. Well, किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था ये, because Liverpool are such a good team. And बात करेगा Brentford की, well, they defeated Manchester United 4-0 in their last match. नंगा करके भाई छोड़ दिया United को, and दोनों टीम्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं. Fulham की अगर बात करें, well, it will be very important that Alexander Mitrovic, he starts, he shines. उनका शाइन करना, उनका स्कोर करना Fulham के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जब भी वो स्कोर करते हैं, जब भी वो परफॉर्म करते हैं, Fulham आर द फेवरेट्स एंड Fulham मोस्टली विंस. बात करेगा ब्रेंटफोर्ड की, एज आई सेड, यूनाइटेड के अगेंस्ट दे वो ब्यूटीफुल, दे वो ब्रिलियंट. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका. काउंटर अटैक्स पे गोल बना रहे थे, कॉर्नर्स से गोल बना रहे थे, एंड प्रेसिंग अच्छी थी उनकी. एक बार तो यूनाइटेड जो दूसरा गोल उन्होंने यूनाइटेड ने कंसीड किया, इट वाज ड्यू टू द प्रेसिंग ऑफ ब्रेंटफोर्ड. ऑल्दो यूनाइटेड स्लॉपी थी, बट स्टिल credits cannot be taken away from Brentford. And what I think, this should be a very good match, a very good contest between both these teams. In fact, Brentford ने मिकेल डाम्सगार्ड को भी साइन किया है. He's a very good midfielder. And overall दोनों टीम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, काफ़ी अच्छी दिख रही है. And what I predict is a scoreline of 2-1 in the favor of Brentford. Next up, it's Everton versus Nottingham Forest. Everton are still searching for their first points of the season. 1-0 lost against Chelsea and 2-1 lost against Aston Villa. बात करें अगर Nottingham Forest की, well, they pulled out a very surprising result against a strong West Ham United team. West Ham, who are expected to finish top 5, top 6, and David Moyes के under, they have been very good. So to Nottingham Forest to pull out a result, in fact 3 points in that contest, it was very good of them. And मेरे हिसाब से वो एवर्टन के अगेंस्ट भी अच्छा खेल सकती है, बिकॉज एवर्टन ऑल्सो आफ्टर साइनिंग कोनो कोडी डोंट लुक दैट गुड इन द बैक, एंड लगता है उन्हें टाइम लगेगा सेटल होने के लिए. सो नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास एक चांस ज़रूर है, बट आई स्टिल थिंक दिस मैच विल एंड अप इन अ 1-1 ड्रॉ. Last to talk in the goal rush is Crystal Palace versus Aston Villa. पैलेस भाई साहब, इन्होंने एक बहुत बढ़िया पॉइंट जीता था लिवरपूल के अगेंस्ट, बिकॉज लिवरपूल एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, एंड टू विन इवन अ पॉइंट एट एनफील्ड, वेरी गुड वर्क फॉर देम. बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से खेले वो, एंड पैट्रिक वियरा की साइड इट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग. बात करें अगर एस्टन विला की, वेल, दे वॉन अगेंस्ट एवर्टन एंड वॉन देयर फर्स्ट पॉइंट्स ऑफ द सीजन, एंड मेरे हिसाब से दे आर इन अ गुड फॉर्म. बट फिलिप कुटिन्यो, येस, ही गॉट इंजर्ड इन दैट मैच, एंड इट इज लाइकली दैट ही विल मिस दिस मैच. सो देखना पड़ेगा कि एस्टन विला उनके बिना कैसे खेलती है, बिकॉज फिलिप कुटिन्यो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर टू दैट टीम. एंड क्रिस्टल पैलेस एंड एस्टन विला दोनों की टीम्स काफी अच्छी दिख रही है अगर एक दूसरे से कंपेयर की जाए, एंड इट शुड बी अ गुड कॉन्टेस्ट बिटवीन देम. व्हाट आई प्रेडिक्ट इज अ 2-1 स्कोर लाइन टू क्रिस्टल पैलेस.
लास्ट मैच ऑन सैटरडे इज बॉर्नमथ वर्सेस आर्सेनल। भाई साहब, बॉर्नमथ की किस्मत थोड़ी ख़राब लग रही है। दे प्लेड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, 4-0 हारे। नाउ दे प्ले अगेंस्ट आर्सेनल एंड दे विल प्ले नेक्स्ट अगेंस्ट लिवरपूल। सो काफ़ी बुरे हफ्ते जाएंगे उनके। बट या, लेट्स टॉक अबाउट दिस मैच। आर्सेनल क्लियरली द फेवरेट्स, क्लियरली द स्ट्रॉन्गर टीम, won against Leicester comfortably in a 4-2 scoreline, and मेरे हिसाब से they should be winning this easily. Bournemouth, no disrespect to them, but yeah, in the Premier League it will be tough for them. They have to fight hard to stay in there, and मेरे हिसाब से I don't think they can even get a point out of this. आर्सेनल बहुत अच्छी दिख रही है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन। दे हैव बीन प्लेइंग वेरी गुड, अच्छे साइनिंग्स किए, जेजूस, जिनशेंको, दे हैव बीन वेरी गुड। इनफैक्ट विलियम सालिबा, नो, बहुत ऑर्गेनाइज एंड एक स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है आर्सेनल की, एंड आई डोंट सी देम लूजिंग टुमारोज मैच, एंड व्हाट आई प्रेडिक्ट इज अ वेरी कंफर्टेबल एंड ईजी 3-0 विन टू आर्सेनल। अब आ गया संडे एंड देयर आर 3 मैचेस, लीड्स यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी एंड वेस्ट हैम यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन एंड होव एल्बियन। बोथ मैचेस किकिंग ऑफ एट द सेम टाइम, एंड देन इट्स द चैंपियंस मैनचेस्टर सिटी वर्सेस द रिचेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड न्यूकासल यूनाइटेड। सबसे पहले बात करते हैं लीड्स यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी की। दोनों टीम्स एक ड्रॉ के साथ इस मैच में आ रही है। लीड्स दे ड्रू अगेंस्ट साउथहैम्पटन, whereas चेल्सी दे ड्रू अगेंस्ट अ वेरी गुड टॉटनहम हॉटस्पर टीम। मेरे हिसाब से चेल्सी आर द स्ट्रॉन्गर टीम, ऑब्वियसली, although they will be missing Thomas Tuchel who got a red card in the final moments of the match, but still Chelsea उनके बिना they will be good. You know, एक काफ़ी strong team दिख रही है। They played very well against Tottenham Hotspur, जो कि favorites थे मेरे हिसाब से, because Hotspur बहुत सारे अच्छे साइनिंग्स किए थे उन्होंने, but still even Chelsea got a point out of that match, and मेरे हिसाब से लीड्स के लिए वो ज़्यादा अच्छे होंगे। Koulibaly has been in good form, he scored a goal, you know, Kai Havertz has been good, Mason Mount has been good, Raheem Sterling is finding his form, so मेरे हिसाब से it should be an easy victory for them, and I predict a 2-1 scoreline to Chelsea. अब बात करते हैं वेस्ट हैम यूनाइटेड एंड ब्राइटन की। वेल, वेस्ट हैम किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था टू लूज देम अगेंस्ट द न्यू कमर्स नॉटिंघम फॉरेस्ट। 1-0 का लॉस, डेक्लन राइस मिस्ड अ पेनल्टी, इट वाज अ गुड डे फॉर देम। एंड वेस्ट हैम यूनाइटेड, बाय द वे, दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर देयर फर्स्ट पॉइंट्स, एंड एक ऐसी टीम हु वांट्स टू फाइट फॉर दैट यूरोपियन स्पॉट, एटलीस्ट फॉर द यूरोपा लीग, they have to start well, and Manchester City के against lost, Nottingham के against lost, so they will be fighting to at least, you know, get their first points against Brighton, and मेरे हिसाब से they are confident, they are good. बात करेगा ब्राइटन की, well, it was a frustrating draw against Newcastle, goalless रहा था मैच, and दोनों टीम्स के पास मौका है, you know, टेबल के ऊपर क्लाइम करने को, पॉइंट जीतने को, एंड एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता है। वेस्ट हैम यूनाइटेड, दे आर द स्ट्रॉन्गर टीम, बट इट्स ऑलवेज वेरी गुड टू सी अ ग्राहम पॉटर साइड, एंड एक अच्छा मैच हो सकता है दोनों टीम्स के बीच में, एंड व्हाट आई प्रेडिक्ट इज अ 2-2 स्कोर लाइन। अब बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यूकासल की। वेल, मेरे हिसाब से दिस शुड बी अनदर इजी विन फॉर द चैंपियंस। बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, वॉन देयर ओपनिंग मैच अगेंस्ट वेस्ट हैम, देन अ 4-0 डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट बॉर्नमथ, एंड न्यूकासल के अगेंस्ट ऑल्दो दे हैव अ गुड टीम, बट आई डोंट थिंक इतना कुछ चैलेंज कर पाएगी उनको। मैनचेस्टर सिटी आर डिफरेंट टीम, यू नो, डिफरेंट लीग में खेलती है वो, बैक टू बैक प्रीमियर लीग्स, want to win the Premier League again, will be try to retaining it this time, and मेरे हिसाब से this should be a very comfortable win for them. Erling Haaland, although he didn't score, but he got an assist. Gundogan scored. De Bruyne क्या खेला भाई वो last match. So सारे players अच्छे form में, they don't have any issues regarding injuries, and what I see is a comfortable win for them, and I predict a scoreline of 3-0. सो भाई, इतने थे वीकेंड के मैचेस, ऑल्दो देयर इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच ऑन मंडे, दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। उसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे, एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, कमेंट्स में अपने प्रेडिक्शंस ज़रूर बताना, एंड वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, खुश रहो, आबाद रहो, बेफिक्र रहो।